Today we are going to begin with the lesson number 17 of your class 5 EVS, that is the United Nations, the UN. So let's begin with this lesson. After the end of First World War, जो हमारे First World War end हो गया था 1914 से 1918 में, the League of Nations was formed in 1919 to maintain a peace in the world. एक League of Nations फॉर्म हुआ था हमारे 1919 में, क्या मेंटेन करने के लिए? पूरे वर्ल्ड में शांति को मेंटेन करने के लिए. बट इट फेल्ड इन इट्स मिशन, वो मिशन में अपने फेल हो गया था. द सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1913 से 45 के बीच में जो हुई थी, caused a huge damage to human life. इसमें क्या हुआ था? बहुत सारा huge damage हुआ था हमारी human life को. After the Second World War II, all the nations felt the need for an organization that would maintain the peace and security in the world. तो फिर क्या हुआ था? पूरे वर्ल्ड में जो थी कंट्रीज ने फील किया था कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बननी चाहिए जो पूरे हमारे वर्ल्ड में शांति को मेंटेन करके रखे, पीस को और सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखे. This led to formation of United Nations Organization, that is UNO. इससे क्या बनी थी? एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी यूनाइट करने का, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन. कब बनी थी? 24 अक्टूबर 1945 में बनी थी. So under the initiative of the former president of America, Franklin D. Roosevelt. कौन थे उस टाइम में फॉर्मर प्रेसिडेंट अमेरिका के? फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट थे. Currently, the UNO has 193 member countries. UNO में United Nations Organization में कितने member countries है? 193 member countries है. It has 6 official languages. उसकी 6 official languages है. Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish. उसकी 6 official languages है. The UN emblem is a map of world enclosed in the olive branches of a blue background. जो UN emblem था वो क्या है? It is map है जिससे किससे enclosed है? The olive branches so enclosed on a blue background. Now principle of UN. Principle क्या है UN के? The member countries must abide by the following principle prescribed by the UN. So all member countries must respect each other's sovereignty and rights. सारी member countries को respect करनी चाहिए एक दूसरे की sovereignty की और rights की. All disagreement will be settled through peaceful means. जो भी disagreement होगा एक शांतिप्रिय से उसे solve किया जाएगा without the use of threat and force. कोई भी threat और force को use करे बिना. All member countries shall support the UN in all the activities. सारी member countries को support करना UN को सब activities में. Objective क्या थे? The main objective of UN are as follows: to maintain peace in the world, कि शांति maintain करनी है पूरे world में. To develop the friendly relation among member countries, friendly relation में develop करना है सारी countries में. To promote respect for human rights and freedom, respect promote करनी है human rights के लिए, freedoms के लिए. To achieve international cooperation in solving economic, social, cultural and humanitarian problems, achieve करनी है international cooperation क्या solve करने के लिए? Solving economic problems को, cultural problems को, humanitarian problems को solve करने के लिए. The UN encourages its member countries to keep aside individual interests and focus on global issues that affect all nations. UN ने encourage करा था जो member countries थे कि अपनी आपके जो individual interest है उनको side में रखो, focus करो पूरे world को develop करने में, पूरे world के जो nation के issues है, global issues है, उन्हें solve करने में focus करना है. Bodies क्या है? The World UN is carried out by 6 major bodies. 6 major bodies are one of which is functional anymore. वो अब कोई function नहीं करती उनमें से एक. Like first is General Assembly. The General Assembly is the main body of UN. General Assembly क्या main body है हमारे UN की, United Nations Organization की. All member countries of UNO meet here and discuss the problems. यहाँ पे क्या होती है? मीटिंग होती है सारे हमारे UNO की, UNO member countries की, और उनको डिस्कस करते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम्स. The decisions are taken through voting. किससे decisions होता है? वोटिंग के थ्रू होता है. Each member country has one vote to support or reject any decision that the assembly takes on any matter. हर मेंबर कंट्री को क्या होता है? एक वोट होती है सपोर्ट करने के लिए और रिजेक्ट करने के लिए कि जो कोई और डिसीजन लेता है दैट असेंबली टेक्स और एनी मैटर ऑन एनी मैटर. नाउ सिक्योरिटी काउंसिल. The Security Council is responsible for maintaining peace and security between the countries. किस लिए responsible है? Maintain करने के लिए security को, peace को countries के बीच में. It consists of 15 member countries. इसमें 15 member countries है with
5 permanent members China, France, Russia, the UK and the USA. So इसमें 5 permanent members है आपकी, चाइना हो गई, फ्रांस हो गई, रशिया, the United Kingdom and the United States of America. It tries to stop conflict, hold peace talks and sends peace forces it required. क्या करती है? स्टॉप करती है, कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकती है, होल्ड करती है पीस टॉक्स को एंड सेंड्स पीस कीपिंग फोर्सेस, वो जो शांति करने वाली फोर्सेस है भेजती है उन्हें अगर रिक्वायर्ड होती है, तो रिक्वायरमेंट होती है. सो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, दिस काउंसिल मैनेजेस द इकोनॉमिक, सोशल एंड ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज ऑफ द यूएन. जो काउंसिल होती है मैनेज करती है इकोनॉमिक, सोशल एंड ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज जो भी आपकी यूएन की होते हैं. इट हेल्प्स द पुअर एंड नीडी पीपल ऑफ द वर्ल्ड, ये हेल्प करती है पुअर को और नीडी पीपल जो भी आपके वर्ल्ड के होते हैं. ट्रस्टीशिप काउंसिल, the UN had another body called the Trusteeship Council till 1994 to look after the 11 countries which were not independent then. UN की एक और बॉडी थी that is called Trusteeship Council. कब तक थी वो? 1994 थी. तो किस पे लुक आफ्टर करती थी? 11 कंट्रीज पे लुक आफ्टर करती थी जो इंडिपेंडेंट नहीं थी जब तक. Now all of them are independent. अब सब इंडिपेंडेंट है. So this council is not functional anymore. तो इसलिए अब ये इस काउंसिल की नीड ही नहीं है, तो ये फंक्शन ही नहीं करती अब. सेक्रेटरीट, द सेक्रेटरीट इज हेडेड बाय द सेक्रेटरी जनरल. इसको कौन हेड करता है? सेक्रेटरी जनरल हेड करते हैं. It maintains records and files and look after day-to-day activities of the UNO. ये रिकॉर्ड को मेंटेन करता है, फाइल्स को मेंटेन करता है, लुक आफ्टर करता है डे-टू-डे एक्टिविटीज को यूएनओ की. एंटोनियो गुटेरेस इज द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ. सो एंटोनियो गुटेरेस क्या है? आपके प्रेजेंट जनरल सेक्रेटरी है यूएनओ के. नाउ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज द लीगल कोर्ट ऑफ द यूएन. ये क्या है? लीगल कोर्ट है हमारे यूएन की, यूनाइटेड नेशन की. इट सेटल्स डिस्प्यूट बिटवीन कंट्रीज एंड एडवाइज मेंबर कंट्रीज ऑन मैटर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ. ये क्या करती है? डिस्प्यूट सेटल करती है जो कंट्रीज के और नेशंस के बीच में होते हैं, और मेंबर कंट्रीज को एडवाइस करती है ऑन मैटर्स जो इंटरनेशनल लॉ में है. इट हेडक्वार्टर्स इज एट द हेज, नीदरलैंड्स है कि इसके हेडक्वार्टर्स का हेज में है जो नीदरलैंड्स में है. This is the picture of the headquarters of the International Court of Justice. Now agencies of the UNO. UNO की क्या-क्या agencies हैं? The agencies of UNO help in various tasks. वो बहुत सारे tasks में आपको help करती है. The main agencies are World Health Organization, WHO. बहुत famous name है, आपने सुना होगा. It was founded in 7th April 1948. 7th April 1948 में found out हुई थी. Its main functions are to control the spread of infectious disease. जो भी कोई infectious disease है उसे spread को control करने के लिए. Improve the general health of people of the world by educating them about personal hygiene, sanitation and good and food habits. इसकी main function improve करना general health के लिए, जो भी people की होती है world की, पूरे world के people की होती है, उन्हें educate करके, उन्हें बता के personal hygiene के बारे में, sanitation के बारे में और good food habits के बारे में. United Nations Children Emergency Fund, UNICEF. UNICEF was founded in 11th December 1946 में find out हुई थी to look after the development and education of children mainly of poor countries. ये किस पे look after करती है? education पे और development पे जो poor children होते हैं poor countries में. So United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, that is UNESCO. The UNESCO promotes peace through education, science and culture of different countries. ये क्या करती है? प्रमोट करती है पीस किसके थ्रू? एजुकेशन के थ्रू, साइंस एंड कल्चर और डिफरेंट कंट्रीज के थ्रू. सो प्रिजर्व हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड हेरिटेज साइट्स ऑफ द वर्ल्ड. प्रिजर्व करती है हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को और हेरिटेजेस को जो पूरे साइट्स में आपके पूरे वर्ल्ड में. दिस इज द एम्बलम ऑफ द यूनेस्को, एम्बलम ऑफ FAO. FAO क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. The FAO helps to remove food problems and improve agricultural produce in various countries. ये क्या करती है? फूड प्रॉब्लम्स को रिमूव करती है जो भी आपकी कंट्री में आते हैं, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस को इम्प्रूव करती है बहुत सारी कंट्रीज में. इंडिया एंड द यूएनओ. इंडिया ज्वाइन द यूएन ऑन 30 अक्टूबर 1945 को इंडिया ने ज्वाइन कर लिया था यूएन को. It is considered to be one of the founder member of the UN. ये क्या है? One of the founder member है हमारी UN की. It has played an active role in promoting international peace and security. बहुत ज़्यादा active role play करा है
प्रमोट करने में, इंटरनेशनल सिक्योरिटी में और आपके पीस में शांति को मेंटेन करने में. इट हैज आल्सो पार्टिसिपेटेड इन वेरियस रिलीफ ऑपरेशन ऑफ ह्यूमन एजेंसी. बहुत सारे आपके रिलीफ ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट करा ह्यूमन एजेंसी के इंडिया ने. नाउ इंटरनेशनल डेज. UNO has selected some days of the year when the world raises awareness programs on health, environment or literacy. कुछ प्रोग्राम डेज होते हैं जैसे आपकी जो लिटरेसी पे आपके गवर्नमेंट ने अवेयर करने के लिए बना रखा है, हेल्थ पे, एनवायरनमेंट पे कुछ डेज होते हैं आपके. These are celebrated all over the world and are called universally celebrated festival. ये पूरे वर्ल्ड में डे सेलिब्रेट होते हैं और इनको क्या कहते हैं? यूनिवर्सली सेलिब्रेटेड फेस्टिवल्स कहते हैं. कुछ इनमें से है, some of these are वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे. हर जगह सेलिब्रेट होता है. कब सेलिब्रेट होता है ये? 5 जून को सेलिब्रेट होता है. टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट प्रिजर्विंग द एनवायरनमेंट. आपको ये अवेयरनेस क्रिएट करता है क्या करने के लिए? जो आप प्रिजर्व कर सकते हो अपने एनवायरनमेंट को. द फर्स्ट एनवायरनमेंट डे वाज हेल्ड इन 1973. 5 जून को फर्स्ट एनवायरमेंटल डे हुआ था आपका. वर्ल्ड हेल्थ डे कब होता है? 7 अप्रैल को होता है. टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन हेल्थ. इससे क्या होता है? अवेयरनेस क्रिएट होती है आपकी हेल्थ के लिए. इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को सेलिब्रेट होता है. टू मेक पीपल रियलाइज द वैल्यू ऑफ एजुकेशन. जिससे पीपल को पता चले कि क्या वैल्यू होती है एक एजुकेशन की. ह्यूमन राइट डे से 10 दिसंबर को सेलिब्रेट होता है. टू मेक पीपल अवेयर अबाउट देयर राइट्स इंक्लूडिंग राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम एंड राइट टू एजुकेशन. ये कब सेलिब्रेट होता है? 10 दिसंबर को सेलिब्रेट होता है. जिससे पीपल अवेयर हो जाए आपकी राइट टू लाइफ के बारे में, राइट टू फ्रीडम के बारे में, राइट टू एजुकेशन के बारे में. नोबेल पीस प्राइजेस आल्सो अनाउंस ऑन दिस डे. नोबेल पीस प्राइज कब अनाउंस होते हैं? आपके ह्यूमन राइट्स डे पे अनाउंस होते हैं. इंटरनेशनल अर्थ डे 22 अप्रैल को सेलिब्रेट होता है. टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट आवर रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स आवर प्लैनेट्स एंड आवर एनवायरनमेंट. क्या करती है? क्रिएट करती है अवेयरनेस आपकी रिस्पांसिबिलिटी के, आपके प्लैनेट्स के लिए और आपके एनवायरनमेंट के लिए कि आप अपने अर्थ को कैसे सेफ रख सकते हो. इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को सेलिब्रेट होता है. टू ऑनर ऑल दोज हु वर्क इन फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, मिल्स एंड वर्कशॉप्स. इट इज आल्सो कॉल्ड मे डे. ये कैसे कब आप सेलिब्रेट होता है? 1 मई को सेलिब्रेट होता है. क्या करता है? ऑनर करता है जो आपकी फैक्ट्रीज में वर्क कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज में, मिल्स में एंड वर्कशॉप में. और उसको क्या कहते हैं? मे डे भी कहते हैं. वर्ल्ड नॉन वायलेंस डे कब सेलिब्रेट होता है? 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट होता है. Started from the year 2007 to spread Gandhiji's ideology of non-violence. गांधी जी के बर्थडे वाले दिन सेलिब्रेट होता है, गांधी जयंती वाले दिन. कब से स्टार्ट हुआ? 2007 से स्टार्ट हुआ है, जिससे आप नॉन वायलेंस आइडियोलॉजी को स्प्रेड कर सको पूरे वर्ल्ड में. सो यूएन डे 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट होता है. टू mark the birth of UNO. The UNO is taking steps to make this world a better place to live in with the cooperation of all members nation. UNO आपका UNO बर्थडे होता है आपका 24 अक्टूबर को. इससे क्या होता है? ये स्टेप्स लेता है आपकी जो UNO है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन. ये ऐसे स्टेप्स लेती है जो आपके पूरे वर्ल्ड को हेल्प करते हैं सॉल्व करने में, वर्ल्ड इश्यूज को पीस मेंटेन करने में और आपके वर्ल्ड को एक अच्छा प्लेस बनाने के लिए, रहने के लिए. और इसमें कौन सपोर्ट करते हैं? ऑल मेंबर नेशन सपोर्ट करते हैं. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a great day.